Okay, so let's look at the solutions of 2023 board paper, and this is how it goes. So if you look at the first question here, it says that to draw the graph of 4x plus 5y equals to 19, you have to find y when x equals to 1. So what you have to do here, you have to just substitute the value of x equals to 1 in the given equation. So it becomes 4 into 1 plus 5y equals to 19. So this becomes 4 plus 5y equals 19. 5y equals to 19 minus 4. Therefore, 5y equals to 15. Y equals 15 by 5. Y equals to 3. So your correct answer is B. Okay, so let's go ahead with the next question. I hope you are getting it how to do it. Let's solve next one. The second question. In this, it says out of the following equation, which one is not a quadratic equation? Now, you should see, basically, when they say not a quadratic equation, you have to simplify and then come to conclusion. So, if you look at option A over here, x square and x square is cancelled. So, what is left is 4x equal to 11. And this is nothing else but this is my linear equation. So, linear equations are a different type of equations. If you look at over here, then this is x square minus 4x equal to 0. This is quadratic. Power is 2, again quadratic. This is x square. When it goes to the left, becomes minus x square and then minus x square. So again, you will get this also is a quadratic equation. So my correct answer is A. Hope you are getting it. Next question. Now let's given the for the given AP, A is given, B is given, and find Tn. It's very simple. Use the formula. Tn equals to A plus n minus 1 into D. And A is 3.5 plus n minus 1, B is 0. I will get this answer as 3.5. My correct answer is B. Next. So now in this equation, if you see, it's given that PA equals to NA equals to 2, P is 1 by 5, and you have to find NS. So now how do you find NS? We know the formula for probability. It's P of A equals to N of A upon N of S. So now P of A is given, so I substitute this value as 1 by 5 equals to N of A is 2 upon N of S. So I transform this, my N of S goes to one side, N of S is equals to, my 5 goes this side, so it's 2 into 5, so therefore N of S will be 5 to the 10, my correct answer is A. Hope you are getting it, how to solve these questions. Okay, I hope so far you got all the correct answers. Let's go with the next one. Now in this particular question, you will see that find the value of the following determinant. How do you solve this? First we multiply 7 over here. This is 4 into 7 minus. When we multiply this over here, we have to take minus in advance. So it's 3 into 2. 7 4 is 28 minus 3 2 is 6. 28 minus 6 is 22. The correct answer is 22. Next question. Okay, so in the next question, if you see here, question says find the common difference of the following. Common difference, you have to find the value of D. Now, if you look at this, you will come to know that this is your first term T1, this is T2, T3,
T4. So my difference is always equal to T2 minus T1 here. Now this will be 4 minus 2, which will give me 2. Same way my another, if I want to verify it, then I can do it T3 minus T2. I subtract 6 minus 4, again I'm going to get the value of DS2. The next, if I again want to try, I can try T4 minus T3, 8 minus 6, which will give me 2. So you will see that the value of D is everywhere same, which is 2. Okay, let's go to the next question. If you look at this question, on a certain article, the rate of CGST is 9%, and what is the rate of SGST? Actually, my SGST and CGST are same, equally divided. So therefore, my SGST value will be nothing else, but it's 9%. Okay, let's go to the next question. I hope you have done all these questions correct. So there is no scope of losing marks. These are very simple and scoring questions. If one coin is tossed, write the sample space. So we have to make a sample space S. When it says that it's one coin toss, brackets, coin has head or tail. So my sample space should look something like this. And if they would have extended the question such as the number of elements, then it will be n of x, which is equal to 2. समझ में आ गया? Okay, let's delete all this and go for the next question. Now, in this particular question, what you have to do is complete the activity. So if you look over here directly, it says add equations 1 and 2. So when we add plus 3y and minus 3y will get cancelled. 5 plus 2 will be 7x. And here also we have to add. So 12 plus 9 will be 21, which will turn into 21 by 7. Solve this, we get answer as 3. I hope I'm solving your all queries, and I wish that you have done all these questions correctly. Let's go for the next question. Again, this is also activity. So how will you solve this? Now, if you compare this with this given equation in general form, you get the value of A as 1, B as 2, and if you compare this C, you will get C as minus 9. So my C is minus 9. If I simplify this ahead in the formula, B square minus 4AC, 4 into A is 1, C is minus 9. Simplify this ahead, what equation will I get? 2 square is 4, minus into minus will become plus, and 9 4 will become 36. So actually you should get the value as 36 here, which will give you as 40. Okay. Let's go to the next question. Again, this is also the activity. Now in this activity, how are you solving it? To understand that thoroughly, how do we solve this? Okay. Okay, so in this particular question, if you see the question says the face value is rupees 100, it is sold at par. When we say it's at par, we mean to say face value is always equal to market value. So here I will get this answer as 100. Don't forget to write the unit, which is rupees. Let's go to the next question. The question says here
Market value is 575 and it is paid at premium. Premium means it is paid at the profit. Profit of rupees 500. So that means the face value over here will be nothing else but it's rupees 75. Let's look at this. The face value is 10 rupees sold at 5 rupees market value. That means my market value is less than the face value. We sell at discount. So basically here you have to write discount and how much discount? Discount of rupees 5. Let's look at this particular question. Question number 4. Face value is 200. Discount is 50 rupees. That means it's sold at the loss. So my market value today for this will be nothing else but it will be rupees 150. Okay. Next question. Let's move ahead for the next question. Okay, so let's look at this particular question. If you look at rupees 100 share is at par, which is my market value. So when we say it is at par, we mean to say that the value of face value and market value is same. So I should get this as rupees 100. They say that this is at premium of 500 rupees. Market value is 575. Premium means I'm getting advantage, the benefit. The benefit I get only if my share is, let's say, rupees 75. 75 rupees का है, 500 ऐड हो गया 575. Now, if my face value of the share is 10 rupees, I'm selling it at rupees 5. Loss है, नुकसान है, नुकसान में जा रहा है, तो इसको डिस्काउंट बोलते हैं, डिस्काउंट ऑफ rupees 5 over here. Now, if you look at the next question, it's 200. डिस्काउंट मतलब लॉस होता है सपोज, तो उसका मार्केट वैल्यू आज हो गया रुपीज 150. ओके, लेट्स गो अहेड. I hope you are getting it how to solve it, and also those who have done paper today, you are able to get the correct answers. So it's x plus y equals to 4 and 2x minus y equals to 2. We have to simplify, solve these equations and get the answer. Let's say this is my equation number 1, this is equation number 2, and we will add these two equations. Plus y minus y get cancelled. This becomes 3x. This will be 6. Therefore, the value of x is 6 upon 3, which will give me 2. Now substitute x equals to 2 in any of the equation. Let's say equation 1 ले लेते हैं. तो इक्वेशन 1 में हो जाएगा x plus y equals to 4, x is 2, so 2 plus y equals to 4, y equals to 4 minus 2, therefore y equals to 2. हो सके चांस मत लेना, सोल्यूशन सेट लिख देना, सोल्यूशन सेट में आएगा 2, 2. Okay, let's go to the next question. I hope आप लोगों ने सही किया है. Next question. Question number 2 here. इसमें क्या दिया है? Okay, question says write the following equation in this form and write the value of a, b and c. First we will transform this equation. Minus y square left में गया तो हो गया plus y square plus 2y plus 10 यहाँ आ गया तो हो गया minus 10. I have to compare now, so I will write ay square plus by plus c equal to 0. Comparing equations, a value will be 1, b का वैल्यू हो जाएगा 2 और c हो जाएगा -10. Okay, nice. Let's go ahead. Next question. Okay, now in this particular question, it says write an AP whose first term is 10. So 10 दिया है first term, common difference दिया है 5.
तो फर्स्ट टर्म मतलब T1, ओके, विच इज 10. तो AP मीन्स हमको सीरीज चाहिए यहाँ. So how do we get series? If I write this as T1, T2, T3, जो series we want, T2 minus T1 give me D. So T2 minus T1 is D. Now T2 we don't know. T2 minus first term is T1. First difference is how much? 5. So therefore T2 will be equals to 5 plus 10. Therefore T2 equals to 15. So matlab if my first term is 10, my next term will be 15. So on, if you solve, then you get 20, 25. This working is essential because the question is for 2 marks. Okay, let's go ahead. Next question here. Okay, look at this question. Courier service agent charged rupees 590. In the tax invoice, the taxable value is that means the tax to be charged on rupees 500. GST 45 है, GST भी 45 है. So therefore now in this case, my GST will be the sum of these two. Formula लिखना मत भूलना. 45 plus rupees 45, which will give me rupees 90. So हो गया 500 था, 90 rupees GST ऐड हो गया, 590 हो गया. But they are saying find the rate. So rate GST is equals to GST paid upon the total value into 100. So if you look at this, GST 90, total था हमारा 500, जो taxable value था, और into 100 ये गया. Finally हमको ये मिलेगा 18. So the rate is how much? 18%. Okay, I hope you understood. Next question पे चलते हैं. Next question है, okay, since distribution table के हिसाब से mean find करना है. Now यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आप लोगों को. They have given assumed mean. Since to find the mean you have 3 methods. We'll be using a method of assumed mean. Now how do we find assumed mean? The formula what we use to find the mean over here using assumed mean method is, let's say x bar equals to a plus sigma of fi di upon sigma of fi. Assumed mean is already given 300 plus sigma fi di. That means if I add all these values, तो क्या आंसर मिलता है? देखो दिया है यहाँ पे, it's 320. So this will be nothing else but 320 upon sigma fi. Can you see this the value of fi, which is 50? So ये हो गया 50. Okay. Now आगे क्या करना है ये तो आपको आता ही है. I have to just divide this and get the answer. So ये ऐसा cancel हो गया. Divide this with 32 by 5 and you may get answer around about 306.4 or something like that. Okay, let's create this image and go for the next question. So what is the next question? Next question is with regard to probability. Probability करते हैं तो उसके पहले एक काम करते हैं कि हम लोग एक सैंपल स्पेस बना लेते हैं. इसका पहले सैंपल स्पेस बनाने के लिए देखिए क्या दिया है पहले क्वेश्चन में. फॉर्म रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2. मतलब हमको सिर्फ 2 ही लोग चाहिए कमिटी में. कोई कंडीशन नहीं है. 2 बॉयज भी हो सकते हैं, 2 गर्ल्स भी हो सकते हैं, या पेयर ऑफ बॉयज विद गर्ल्स भी हो सकते हैं. सो आई हैव B1 B2, 2 बॉयज एंड गर्ल्स G1 G2. लेट्स से मुझे सैंपल स्पेस बनाना. तो फर्स्ट बॉय का पेयरिंग किसी के साथ जा सकता है, तो इट्स B1 B2 मतलब इसके साथ.
दूसरा आ जाएगा B1 G1 एंड थर्ड विल बी B1 G2। तो हो गया 3 पेयरिंग। नाउ अब क्या, तो ये तो P का इसके साथ हो गया है, इसके साथ अब B2 देखते हैं। ओके, तो B2 B1 के साथ तो लेना नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी ले लिया हम लोगों ने इनको। तो B2 को देंगे G1, ओके, और देंगे B2 G2, मतलब ये B2 इधर और ये B2 इधर। ओके, नाउ अब क्या है, अब ये बचा है G1 और G2। हो गया। तो टोटल तुम्हारे पास सैंपल्स इसमें आ जाएंगे 6 एलिमेंट्स। अब ये 6 एलिमेंट्स आ गया है। अब देखते हैं कमिटी ऑफ 2 बॉयज चाहिए। व्हेन वी से कमिटी ऑफ 2 बॉयज तो क्या लेंगे हम ले लेंगे B1 B2। कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स चाहिए तो क्या लेंगे G1 G2। कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल के अंदर क्या करेंगे, क्या करना है, कमिटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल, तो 1 बॉय 1 गर्ल बराबर है 1 बॉय 1 गर्ल, जो हो गया बॉय गर्ल बॉय। तो बचा हुआ जो है ये कमिटी ऐसा लिख देने का यहाँ पे सैंपल स्पेस बना के बॉय गर्ल का, क्योंकि वही पूछना है। ओके, लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, दिस इज इनवॉइस, और इनवॉइस को कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक है। पीजीएसटी और एसजीएसटी दिया है, दोनों इक्वल रहता है, तो अगर ये 2.5% है तो ये भी 2.5, इसका वैल्यू अगर 50 पैसा है तो यही वैल्यू यहाँ पे रिपीट होगा 0.50, वेरी सिंपल। ओके, ना अगर ये 0.25 है तो यहाँ पे भी ₹0.25 आएगा, और ये 2.5% यहाँ चला जाएगा 2.5%। हाँ, लेट्स गो अहेड। अब आगे क्या करना है, देखिए यहाँ पे फिर से ये 2 वैल्यूज मैच करना है, तो ये 2.5 इससे मैच हो गया, तो ये 3 इससे मैच हो गया। तो वो सब चीज याद रखो, बिकॉज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये दोनों वैल्यूज हमेशा सेम ही रहती है। ओके, अब आगे चलते हैं। फिर टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना होता है, देखो यहाँ पे कैसे ये 10 यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ 20 रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये भी 60 यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। और यहाँ पे तो टोटल लिखना है तुम्हारे को ये पूरी वैल्यू का, तो टोटल कितना आएगा देखिए। अगर तुम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो तुमको टोटल आना चाहिए समथिंग 3.75 रुपीज का सिंगल मील। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, ओके, यहाँ पे क्रेमर्स यूज करना है। क्रेमर्स रूल कैसे यूज करोगे, 4m + 6n = 54 है, 3m + 2n = 4। तो क्रेमर्स रूल के हिसाब से पहले डी फाइंड करेंगे। ओके, नाउ डी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट डालना है, और यहाँ पे ये m और n, तो यहाँ पे ये 4 आ गया, ये 3, ये 6 और ये 2। अब डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करने आता ही आपको, 4 × 2, ये 2 का हो गया 8 माइनस 6 3 या 18, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा -10। सेम वे में भी हम फाइंड करेंगे डी एम। जब हम डी एम बोलते हैं तो ये एम और एन के कॉलम से ये एम हटाना है और कांस्टेंट टर्म्स लेना है, तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा 54 28, एम क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 और 2। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आई थिंक कैलकुलेशन से 108 माइनस 168, ठीक है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 मिल जाएगा, इसको यहाँ करोगे तो माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो -16 मिलेगा। फिर डी एन ले लोगे, डी एन की वैल्यू अगर देखोगे तो आपको मिलेगा 4 3 54 और 28। इसको मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो तुमको ये वैल्यू मिल जाएगी 112 माइनस 162, ये हो गया आंसर आपका -50। नाउ m फाइंड करना है, तो m इज इक्वल टू डी एम अपॉन आएगा d, which will give me -60 upon d -10, कैंसिल 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 2, आंसर बच गया 6।
सेम एन फाइंड करना है तो डी एन बाई डी फाइंड करोगे तो डी एन इज -50 अपॉन -10, ये आंसर बचा 5। आई होप आप लोग को आंसर आ रहा है। सेट बना देना यहाँ पे m comma n equals to 6 comma 5 on safe side. I hope you are getting the answer. Let's move ahead with the next question. So next question देखते हैं। This is again by formula method. सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ मिस्टेक फॉर्मूला लिखने में नहीं करना। तो if I write this is ax square plus bx plus c equal to 0, कंपेयर करते हैं तो a मिलता है 1, b is 10 and c is 2. You want to find b square minus 4ac. Okay, so b square मतलब 10 square minus 4 into a into c. If you solve it, this is 100 minus 4 to the 8. So 100 minus 8 आपको मिल जाएगा 92. Now you apply the formula. So x equals to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2 minus b की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है 10 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 92 अपॉन 2 इंटू ए है हमारा 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आएगा -10 प्लस और माइनस 2 रूट 23। यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड करने में मिस्टेक नहीं करना वरना आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। therefore x इक्वल्स टू -2 अगर कॉमन लेते हैं या अगर माइनस नहीं भी लेते हैं, अगर सिर्फ 2 ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा -5 प्लस माइनस रूट 23 अपॉन 2। ये फाइनल आंसर बचता है -5 प्लस और माइनस ऑफ रूट 23। अब हमको तो रूट चाहिए तो वी विल राइट x इक्वल्स टू -5 प्लस रूट 23 और x इक्वल्स टू -5 माइनस रूट 23। सोल्यूशन सेट बना दो, आंसर हो गया। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, let's go for the next question. Question number 3। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके अंदर दिया है हमको 23579 मेन स्टेटमेंट विदाउट रिपीटेशन करना है। तो हमारे डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है और हमको 2 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, नाउ if I want to make a 2 digit numbers using this, तो पहले हम तो सैंपल स्पेस बनाएंगे। ओके, तो सैंपल स्पेस कैसा बनेगा, यहाँ पे पहले हो जाएगा 23 बिकॉज 2 और 3 का पेयर 23। देन नेक्स्ट पेयर हमको मिलेगा 25, 27, 29। ओके, उसके बाद हमको मिलेगा 32। फिर क्या करना है आपको 3 के साथ में 2, 32, 35, 37, 39। 32 के साथ हमारा आ जाएगा 35, 37, 39। अब 5 के साथ करते हैं तो 52, 52, 53, 57, 59. Then we will do it with 7. So 72, 73, 75, 79. comma अब 9 के साथ करना है तो 92, 93, 95, 97। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया और देयरफॉर n of s दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट काउंट करते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हमारे पास n of s हो गए 20। नाउ इवेंट ए से स्टार्ट करते हैं तो पहले लिखेंगे, तो एक्चुअली ये लोगों ने दे दिया है ए, तो हम डायरेक्टली सेट भी बना सकते हैं। सेट ए इक्वल्स टू यहाँ पे बोला है कि ऑड नंबर लेना है, ऑड नंबर सेलेक्ट करेंगे इसमें से सब
ऑड नंबर सेलेक्ट करोगे तो आपको पहले यहाँ से इवन नंबर्स निकाल लोगे, तो सेट में आपको सिर्फ ऑड नंबर्स लिखना है। इसका मतलब ये नंबर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी इवन नंबर है, देखो 2 है यहाँ पे, और ये 92 भी नहीं है। तो इसके अंदर ये 4 नंबर्स छोड़ के बाकी सब नंबर्स लिखना है आपको। तो व्हेन यू राइट द रिमेनिंग नंबर्स दैट इज ऑल ओवर हियर, तुमको मिलता है n ऑफ a। अब n ऑफ 20 है, 20 में से ये 4 चले गए तो बचता है 16। therefore p ऑफ a हो जाएगा, p ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। ना n ऑफ a कितना मिला है हमारे को 16, और n ऑफ s मिल रहा है 20। 4 1 का 4 6 का 5 का 4/5 आंसर आ गया ये इवेंट ए का फर्स्ट वाले का, 4/5 आ गया। ओके, लेट्स गो द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। here is a multiple of 5। ओके, ओ आई एम सॉरी, मैंने इसका सेट हटा दिया। लेकिन अगर आप इसका मल्टीपल ऑफ 5 देखते हो तो आपको कौन कौन से मल्टीपल ऑफ 5 मिलेंगे? नंबर क्या थे हमारे डिजिट? 2 3 5 7 9 है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एक बार चेक कर लेते हैं पर जाके फिर से। हाँ, करेक्ट है 2 3। इसमें हमको चाहिए मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का एक्चुअली सिंपल है, 25 मिलेगा, 35 मिलेगा, 75 मिलेगा और 95। तो ये तुम्हारा सेट बी के एलिमेंट्स मिलेंगे एस। देन यू हैव टू फाइंड एन ऑफ बी। एन ऑफ बी है 4, सो पी ऑफ बी क्या हो जाएगा तुम्हारा? पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी हाउ मच? 4। एन ऑफ एस कितना है भाई अपना? 20। हो जाता है 1/5। आई होप आप लोगों ने ये सब करेक्ट करके आया है, फुल मार्क्स स्कोर करोगे। आई प्रे दैट। ओके, यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करना है तो कैसा करेंगे? मीडियन का फॉर्मूला चाहिए फिर हमको, लेकिन उससे पहले हमको चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करना है भाई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है या नहीं आता है? ये सबसे सिंपल लॉजिक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर दिए तो आपको 1 मार्क तो मिल जाएगा इजीली। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 33, देन ये हो जाएगा 33 प्लस 30, 63। 63 प्लस 90 करोगे तो बोलो क्या आंसर आएगा? मेरा मैथ तो बहुत ही कमजोर है, आप बता दीजिए। ओके, क्या बात है, हमने सुन लिया। 153 हो गया। नेक्स्ट 153 प्लस 80। 153 प्लस 80 हो जाएगा 233। 233 प्लस 17 विच विल गिव मी 250। तो हमारे पास अब अगर देखा जाए तो हमको मिल गया है एन। एन कितना है? 250। ये होता है हमारा एन। अगर एन मिल गया है तो क्या हम n/2 फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि हमारे फॉर्मूले में कहीं ना कहीं n/2 की जरूरत है। तो 250 डिवाइड बाई 2, 125। अब अगर हम देखेंगे तो 125 इस रेंज में आता है। 125 153 से कम है, इसलिए हमको यहाँ पे जाके ये सी एफ लेना है। तो हमारे को अगर हम देखें तो क्या वैल्यूज मिल गया? वी गॉट सी एफ एस 63। अभी बाकी का वैल्यू क्या चाहिए? रिमेनिंग वैल्यूज में हमको चाहिए एच। एच मिलता है क्लास इंटरवल। अगर क्लास इंटरवल देखोगे तो 50 है। देखो यहाँ पे 100 माइनस 50 या 150 माइनस 100 को आपको क्लास इंटरवल 50 मिल जाएगा। ओके ना, यहाँ पे जो हमने ये सी एफ लिया है तो उसके नीचे जो ये वाला हमको मिलती है ये फ्रीक्वेंसी होती है, और ये उसका लोअर लिमिट होता है। तो अगर मैं मीडियन का फॉर्मूला यूज करता हूँ यहाँ पे तो क्या आंसर मिलना चाहिए? देखिए फॉर्मूला देखते हैं मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? वाई एक्स एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू। अब देखिए क्या क्या वैल्यू पता है। एल हमको पता है 150 हो गया, प्लस n/2 हमने निकाला है 125 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको मिली है 63 अपॉन फ्रीक्वेंसी हमको मिला है 90 इंटू एच मतलब क्लास इंटरवल है 10। ये और ये गया छू।
तो 150 प्लस 125 माइनस 63, अगर ये करोगे तो लगभग तुमको आंसर आना चाहिए कुछ 62, और अपॉन ये हो गया 9। 62 डिवाइड बाय 9 करके देख लीजिए आपको क्या आंसर आता है। जो भी वैल्यू आ गई वो आपको 150 के साथ में सॉल्व कर देना है। अभी मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप करोगे तो आपको कोई ना कोई तो वैल्यू इसकी मिल ही जाएगी। तो लिखना है इसी है 62 डिवाइड बाय 99। हाँ, इतना तो कर ही सकते हो, ऐड करके आंसर मिल जाएगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, जल्दी जल्दी वरना ये क्योंकि अभी ज्योमेट्री पेपर पढ़ना है आपको। तो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में बहुत दम था। दम था मतलब ये करने का एक इसको अलग तरीका चाहिए। आपको कैसे चाहिए था, देखिए इन द इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ये हमको बोला ये फर्स्ट टर्म पी है, सेकंड टर्म क्यू है, और तक 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 आर। हमको दिखाना सम, मतलब हमको चाहिए एस एन। एस एन क्या मिलेगा, एस एन फाइंड करना है। एक एक्चुअली सिंपल लॉजिक बताता हूँ। हमारे पास एक डिराइव्ड फॉर्मूला है which is Sn equals to n by 2 into that a plus tn। tn फाइंड करते हैं भाई, काम खत्म हो जाएगा। तो कैसा करेंगे, फर्स्ट टर्म मेरा p है, डिफरेंस मेरा q माइनस p हो जाएगा, और tn जो मेरा लास्ट टर्म है वो है r। देखिएगा हमको यहीं से ये सब वैल्यूज मिल गई। अब ये वैल्यूज को यूज कैसा करोगे, ठीक है। सो tn का पहले फॉर्मूला लगा के वैल्यू फाइंड करना होगा। tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn मिला है r इक्वल्स टू a, क्या है हमारे पास p प्लस n माइनस 1, और d है हमारा q माइनस p। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये r इक्वल्स टू p प्लस, अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये सब इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे जो एस एन में है ना भाई, ये n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो n की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। ओके, अब मैं जब ब्रैकेट ओपन करता हूँ इसको, तो सॉल्व करने के लिए मुझे क्या मिलेगा, वैल्यूज व्हाट आई विल गेट इज एन क्यू माइनस एन पी माइनस क्यू प्लस पी। ओके, लेट्स मेक द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला एज एन। तो ये कैसा हो जाएगा, अगर इसको सबसे पहले फॉर्मूला बना दिया तो आर प्लस क्यू माइनस पी इक्वल्स टू एन इंटू क्यू माइनस पी। यहाँ से एन कॉमन मिल जाएगा हमारे को, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये हो गया आर प्लस क्यू माइनस टू पी अपॉन क्यू माइनस पी इक्वल्स टू एन। अब ये वैल्यू एन की अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते तो हमारा काम आसान हो गया। तो ये एन की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा ये, एन इक्वल्स टू एन आर प्लस क्यू माइनस टू पी अपॉन टू इंटू क्यू माइनस पी। ये टू ऑलरेडी है यहाँ पे। ए, ए क्या है हमारा, ए पी प्लस टी एन क्या है हमारा, टी एन की वैल्यू देखिए यहाँ पे है टी एन इज आर, और एक्चुअली देखोगे तो आपको आंसर मिल गया भाई। देखो क्यों, ये टर्म को इसके साथ ले लीजिए तो आंसर मिल गया। ओके, नाइस, क्लियर करता हूँ ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और बस फाइनल फिर पेपर फिनिश आप लोग का। ओके, ना यहाँ पे देखिए आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्लास मार्क लिखना है। क्लास मार्क का दूसरा नाम होता है मिड पॉइंट। तो 200 400 का मिड पॉइंट हो जाएगा 300, यहाँ पे हो जाएगा 500, ये 700, और ये हो जाएगा 900, हो जाएगा 1100। ये मैं फिलहाल यही तो रफने बताता हूँ, आपको कैसा करोगे। यहाँ पे आपको ग्राफ के लिए आपको चाहिए वाई एक्सिस, और साथ में आपको चाहिए एक्स एक्सिस। ना, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, जरा भी टेंशन नहीं लेने का। आप किंग ड्रॉ करके ओजा ड्रॉ करके कहानी खत्म कर दो। ये किंग आ गया, और उसके बाद से फिर आप कहीं से भी शुरू करो। फिर एक चीज याद रखिए, ये 300 है तो यहाँ से 200 से स्टार्ट करना है, क्योंकि एक जो फ्रिक्वेंसी होती है जीरो होती है। तो 200 300 400 500 ऐसा प्लॉट करते जाएंगे आगे 1100 तक। 200 वाला
सॉरी 200 नहीं आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, 100 300, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो यहाँ पे क्योंकि टेबल में कुछ है ही नहीं तो ये 0 हो गया। हाँ, अगर हम यहाँ देखेंगे ये फैमिली, तो ये 160 को चाहिए, तो यू कैन इट 1 सेंटीमीटर ओवर हियर एज 100, 200, 300। नहीं चाहिए तो 50 भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्केल लिखना ना भूलना। स्केल क्या लिखेंगे? ऑन एक्स एक्सिस, एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितना यूनिट रहेगा यहाँ पे भाई? 200। ओके, दैट इज। तुम देखोगे यहाँ पे तो ये मेजर जो कर रहा है ये यूनिट है रुपीज, तो यहाँ पर भी रुपीज यूनिट लिखना जरूरी है। 200 रुपीज ऑर्डर में लिखना, मतलब शेड्यूल ऑफ करना। और वाई एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो वाई एक्सिस पे तुमको लिखना है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 100 यूनिट। ओके, अब 300 के लिए अगर तुम लेते हो तो तुमको 240 मिलेगा, यहाँ तक जाओगे तो 250, एक कम लाइन में ना ऐसा, और ये ऐसा यहाँ तक। अगर तुमको 500 चाहिए तो यहाँ 500 है, 500 की वैल्यू आना चाहिए 300, तो यहाँ पे गया ऐसा सर्कल करके गया, और फिर ड्रॉ करके एम में आपको यहाँ पे यहाँ पे 0 लाना है, एक लास्ट वाला जो 1300 के लिए फ्रीक्वेंसी 0 वो यहाँ आ जाएगा। ओके, लेट्स क्लियर ऑल दिस, come to the next question. I hope you are getting it how to solve it. Okay, let's come to the word problem. सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ बोल रहा है 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। हम अलग अलग तरीके से नंबर अज्यूम कर सकते हैं। इजी सबसे ये है कि x माइनस 2, एक्स माइनस 1, एक्स, एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, ये मेरे 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। नाउ क्वेश्चन से सम, तो सम मतलब प्लस करोगे, लेकिन किसको? स्क्वायर्स को। तो यहाँ पर आएगा ये x minus 2 the whole square plus x minus 1 the whole square plus x square plus x plus 1 the whole square plus x plus 2 the whole square, and this everything is equals to 1455। तो इसका ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक है। देयरफॉर आके अगर लिखोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो गया। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 1455। ओके, अभी देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। -4x और -2x हो गया -6x, ये और ये मतलब ऐसा है कि सब छू हो गए, ये अपने अपने घर चले गए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2, 3 और 4, तो ये सब मिला के हो गया 4x स्क्वायर। नंबर्स लेते हैं, 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 6 7 8 9 10 11। मिसिंग है क्या भाई? ओके, एक बार चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पे एरर लग रहा है मुझे कुछ, ये 2 नहीं 1 है, सॉरी करेक्ट कर लेना। तो 4x, तो ये सॉरी इधर एक्स पर भी देखिए 1 2 3, एक मिस हो गया था यहाँ पे, ये 4 और ये 5, तो आई एम सॉरी, स्टेटमेंट करेक्ट। 5x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 1455। सॉल्व करोगे तो 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 1455 माइनस 10, 5x स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करके तुमको मिल जाएगा 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 1455 है, तो ये हो गया 1445। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉल्व करोगे इसको तो तुमको ये पूरा सॉल्व डिवाइड करके 289, ये स्क्वायर यहाँ आ गया तो रूट हो गया। एक्स की वैल्यू हो गई +17 लिखना है। एक्स इक्वल्स टू -17 इज अनएक्सेप्टेबल। रीजन को लिखना है व्हाई इट इज अनएक्सेप्टेबल, बिकॉज इट्स देयर नेचुरल नंबर्स। Okay, and natural numbers cannot be negative. ये स्टेटमेंट लिख लिए, तो जब ये इसमें से x इक्वल्स टू -17 डिस्कार्ड हो गया, बचता है x इक्वल्स टू 17। अब x 17 है तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा? 18। x प्लस 2 कितना हो जाएगा? 19। तो ये नंबर्स मिल गए। अब हम
पीछे चलते हैं, x -1 और x -2, तो 17 में से एक गया, बराबर है 17 में से एक गया तो कितना मिलेगा, हाँ कितना तुमको ये, तो यहाँ पे हमको मिलेगा x इक्वल्स टू एक्स माइनस वन बराबर है, और x -2 हो जाएगा 15, नंबर्स मिलेंगे 15, 16, 17, 18 एंड 19। आई होप आप लोगों ने किया है करेक्ट, फुल मार्क्स, फुल मार्क्स। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, पेपर बहुत सिंपल था, वहाँ जिसने किया है मेहनत उसको फुल मिलेगा। देखो ड्रॉ द ग्राफ करना है, एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू 4, तो पहले टेबल कंस्ट्रक्ट कर देंगे यहाँ पे, एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू तुम जो चाहिए वो ले सकते हो, लेकिन अगर सिंप्लीफाइड मेथड में देखना है तो एक्स की वैल्यू अगर डेसिमल में नहीं चाहिए तो ऐसी वैल्यू अज्यूम करो जो इजी हो जाए। तो एक्स अगर जीरो लेते हैं तो यहाँ पे जीरो प्लस टू वाई इक्वल टू 4, तो वाई मिलेगा 2। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, सिंपल ये है कि -2 लेते हैं तो एक्स की जगह पे आ गया -2 प्लस टू वाई इक्वल टू 4, टू वाई इक्वल टू 4 प्लस 2 वाई इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, तो ये हमको दे देगा 3। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 लेता हूँ देन व्हाट विल हैपन, फिर से एक्स की जगह पे 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 4, 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 2, 2y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, तो तुमको ये मिल गया 1। यहाँ पे पॉइंट्स लिखना मत भूलना, बिकॉज यही पे पॉइंट्स आपको प्लॉट करना है, -2, 1। रफली ग्राफ में बता देता हूँ आपको क्या करना है यहाँ पे ग्राफ में। यहाँ पे आपको चाहिए y एक्सेस और आपको चाहिए x। ओके, लेकिन अगर आपको देखना है ये तो आपको एक्चुअली माय मिस्टेक, हम लोग क्या करते हैं इसको 4 क्वाड्रेंट्स वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, थोड़ा आसानी हो जाए। तो ये एक्सेस और लेट्स सॉरी ये मेरा x एक्सेस, ये हो गया मेरा y एक्सेस, उल्टा बोल दिया भाई सॉरी, ये हो गया हमारा x एक्सेस और ये हो गया y। पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है 0,2, तो मुझे 0,2 प्लॉट करना है, तो एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं आएगा, वाई एक्सिस पे 2। मैं पॉइंट्स में ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी करते, -2,3 -2 एक्स एक्सिस पे -2 और 3 वाई एक्सिस पे, तो समझ के पॉइंट यहाँ पे ऐसा आ जाएगा -2,3 2,1 2 एक्स एक्सिस पे, और यहाँ से ये 1 इधर आ। तो अब हमको इन तीनों पॉइंट्स पे ड्रॉ करके एक लाइन ड्रॉ करना है जो ऐसा जाएगी। ओके, लाइन हो गई हमारी ड्रॉ। अब अगर हम देखते हैं तो ये पॉइंट, ये डिस्टेंस देखना है और ये डिस्टेंस देखना है, क्योंकि पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला आता ही है भाई हम लोगों को, कि नहीं आता है, नहीं आता है तो मेहनत करना पड़ेगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू, अगर ये ग्राफ में आप बेस देखोगे इसका तो बेस 4 हो जाएगा, और हाइट देखोगे तो हाइट 2 हो जाएगा। ये क्या आंसर लिखेंगे 4 स्क्वायर यूनिट। भूलना नहीं भाई, ऊपर स्केल लिखना है, इनमें क्या लिखोगे ऑन बोथ दी एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है भाई, काम थोड़ा शैली है, समझ के लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, and the next question is okay, last question pie chart। क्या क्वेश्चन था, सिंपल था। आपको इसके लिए पहले एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेना चाहिए। टेबल में मैं ले लेता हूँ फूड, और फूड के अंदर हमको पहले दिया हुआ है पिज्ज़ा, तो मैंने इसको पिज़्ज़ा ले लिया। बाद में हम लिखते हैं बर्गर, तो पिज़्ज़ा फिर बर्गर और फिर चिप्स। उसके बाद में यहाँ पे दिया है फ्रीक्वेंसी ही लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल है, तो पिज़्ज़ा आ जाएगा 70, बर्गर है 60 और चिप्स है 50। हमको एक्चुअली यहाँ क्या चाहिए ना, वी नीड एंगल, जिसको बोलते हैं थीटा।
देखो उधर टोटल दिया है 180। तो अगर मैं एंगल फाइंड करता हूँ पहले पिज्जा के लिए, तो वो हो जाएगा 70/180 इंटू पूरा सर्कल का मेजर होता है 360 डिग्री। ये क्या आ गया 140 ओके। तो एंगल ऑफ पिज्जा इज 140 डिग्रीज बराबर है। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग, तो हम फाइंड करेंगे अभी एंगल ऑफ अ बर्गर। अगर मुझे एंगल ऑफ अ बर्गर चाहिए तो सेम चीज करेंगे, 60/180 इंटू 360 कैंसिल हो गया, 82 जा तुमको मिलेगा 120 डिग्री। एंगल ऑफ बर्गर भी मिल गया, क्या बात है भाई, बर्गर की बात सुन के भूख लगती है यार। ये खत्म होते साथ में तो बर्गर खाने जाऊंगा। चिप्स का देखते हैं, तो अगर मुझे एंगल ऑफ चिप्स फाइंड करना है तो वो हो जाएगा 50/180 इंटू 360 कैंसिल कैंसिल, टू जा ये हो गया 100। भाई पिज्जा बर्गर ये सब ना जंक फूड है, कम खाया करो। ओके, पाई डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वैल्यूज मिल गई है देखो, 140, 120 और 100 डिग्री। सब पाई डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, डायग्राम क्लियर करता हूँ। पाई डायग्राम के लिए तुमको चाहिए सर्कल, और अगर सर्कल बराबर नहीं ड्रॉ होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ट्राई कर दिया, सर्कल नहीं बना। अगर ये सर्कल फिर से ड्रॉ करते हैं, बार बार ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइनली एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ओके नाउ अगर हम देखेंगे क्या करते हैं, तो सर्कल अच्छा सा फुल एंड फाइनल। ओह सॉरी, ये तो सर्कल ही नहीं हुआ भाई, क्या बात है, लास्ट लास्ट में आपके सब मिस्टेक हो जा रही है। कौन नजर मार रहा है, ये हो गया हमारा सर्कल। नाउ इन दिस सर्कल अगर हम देखें तो हमको चाहिए एंगल्स। एंगल्स के लिए पहले यहाँ सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमको प्रोटेक्टर रखना है। यहाँ पे मैं रफ से दिखाता हूँ, ऐसा प्रोटेक्टर रखना भाई। अभी प्रोटेक्टर तो मौजूद नहीं है हमारे पास। प्रोटेक्टर रख के यहाँ से कितना था पहले वाले का, 140 डिग्री। तो 140 डिग्री मेजर करके ये 140 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये 140 डिग्री हो गया तो ये बाकी का जरूरत नहीं है, ये 140 डिग्री हमने लिख दी। नेक्स्ट अब ये जो मिला हमको, ये तो पिज्जा मिला है, तो पिज्जा की वैल्यू यहाँ डालना मतलब नाम लिखना जरूरी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्या है हमारा बर्गर। बर्गर के लिए भी फिर से प्रोटेक्टर रखना है, तो अभी प्रोटेक्टर को ऐसा रखेंगे, ये ऐसा, और ये पॉइंट इससे मैच करेंगे भाई। तो इससे मैच करोगे और उसके बाद फिर तुम्हारे को क्या करना है, मेजर करके एंगल देखना है कितना होता है। ठीक है, 140 है तो ये 60 का हमारे को मिला था 120, तो समथिंग एंगल ऐसा बन जाएगा। ये एंगल बन जाएगा 120 डिग्रीज, और इसको हम बोल देंगे बर्गर। ऑब्वियसली जो बच गया है ये तो अभी हमारा 100 डिग्रीज है, और ये हो गया चिप्स। और देखो सबसे बेहतरीन लॉजिक ये है कि इसको सब ऐड करोगे तो मेजर ऑफ सर्कल मिलना चाहिए 360 डिग्रीज। ठीक है, आई होप तुम लोगों ने सब पेपर में क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे। टोटलिंग करके देख लीजिए, मार्क्स तुम लोगों को फुल आना चाहिए। ओके, आई होप यू enjoyed. Wait and watch for the geometry paper. All the best. Tada, bye bye.